آج جو ہم لوگ آپ کو آئیڈیا دینے جا رہے ہیں یہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے حوالے سے ہیں. وہ حضرات جو بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے انویسٹمنٹ کا ایک بہت ہی اچھا کوئی مکان آپ بیچنا چاہتے ہیں, لینا چاہتے ہیں. سی ای او حماد اوان صاحب, ان سے جانتے ہیں. بہت چھوٹی سی عمر میں پہلے اپنا آفس بنایا تھا جس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, میں زیرو سے آیا تھا. جو نوجوان اس بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو کچھ ایڈوانٹیجز بھی بتا دیں اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بتا دیں. گوادر اس ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے سر کا تاج ہے. اس وقت یہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, کہتے ہیں کاش اس وقت میں کسی دوست کی باتوں میں نہ آیا ہوتا. لیکن کوئی بندہ آپ کی ریفرنس سے آئے گا, کوئی بندہ اٹک ٹی وی کی ریفرنس سے آئے گا تو آپ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک فہد. زندگی کے نشیب و فراز کو گزارنے کے لیے آپ کی وابستگی کسی نہ کسی ذریعہ معاش کے ساتھ ہونا ضروری ہے. آج جو ہم لوگ آپ کو آئیڈیا دینے جا رہے ہیں یہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے حوالے سے ہیں, کیونکہ بہت سارے نوجوان جو ہیں اس چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں لیکن اس کو اس چیز کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا. تو آج ہم نے ایک ایسی پرسنالٹی کو یہاں پر اپنے ساتھ مدعو کیا ہے جو آپ کو اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی بتائیں گے اس بزنس کے حوالے سے. آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت میں موجود ہوں لینڈ مارک ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی میں, جس کے سی او ہیں حماد اوان صاحب, اور جو واقعہ ہے آپ کے پاس پاکستان الیکٹرانک والے پلازا میں بالمقابل پیزا بیس کے 3 میلے سے کچھ دیر کی ہی مسافت پہ. ان کی کمپنی 3 طرح کے پروجیکٹس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے. نمبر 1 آپ کے پاس مال آف اٹک, جو آنے والے دنوں میں اٹک کے ماتھے پہ ایک جھومر ہے. جی ہاں جناب, آپ کو جہاں پر ملیں گے لگژری اپارٹمنٹس, اچھی دکانیں, اور وہ حضرات جو اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں صرف 25% سے آپ اپنی انویسٹمنٹ کا آغاز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کی روف پہ آپ کو ملیں گے سوئمنگ پول, اچھے ریسٹورنٹ. تو وہ حضرات جو بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے انویسٹمنٹ کا ایک بہت ہی اچھا جو ہے یہ منصوبہ ہے, جس میں وہ انویسٹمنٹ کر کے اپنی آمدنی کو دگنا کر سکتے ہیں راتوں رات. نمبر 2 پروجیکٹ آف گوادر, اس کے ساتھ بھی اسی آفس میں بیٹھ کر یہ ڈیل کر رہے ہیں, جس میں آپ کے پاس 6 مرلے کے پلاٹ ہیں, 8 مرلے کے پلاٹ ہیں, 10 مرلے کے پلاٹ ہیں, 16 مرلے کا پلاٹ ہے, 20 مرلے کا پلاٹ ہے, کم انویسٹمنٹ کے ساتھ. مگر آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ بہت زیادہ کم ہے اور آپ ریئل اسٹیٹ والے بزنس میں کیسے اپنی شمولیت کو یقینی بنائیں گے. تو اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ 2 لاکھ ہے, 3 لاکھ ہے, تو آپ یہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور اپنی آمدنی کو دگنا کر سکتے ہیں. تو جناب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں لینڈ مارک ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ کمپنی کے آنر سی او حماد اوان صاحب. ان سے جانتے ہیں بہت چھوٹی سی عمر میں یہ آپ کے پاس جناب آ چکے ہیں اس بزنس میں, ریئل اسٹیٹ والے میں. ان سے جانتے ہیں ان کی زندگی کا ذاتی تجربہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ. اچھا مجھے یہ بتائیں, بینگ اے بزنس مین آف ریئل اسٹیٹ کب شروع کیا, یہ جرنی کیسے سٹارٹ ہوا آپ کا؟ یہ ریئل اسٹیٹ میں آیا تھا 2019 میں. صحیح, جس وقت کورونا سٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک. اچھا, ریئل اسٹیٹ میں آنے کا مقصد ایک شوق تھا اپنا کہ یار جب بھی کرنا ہے کوئی اپنا بزنس کرنا ہے, چھوٹا کرنا ہے بڑا کرنا ہے, اپنا بزنس کرنا ہے. پھر اس طرح میں لوگوں کو دیکھتا تھا ریئل اسٹیٹ میں کافی ماشاءاللہ یہاں پہ لوگ ارن کر رہے ہیں اور بہترین اور صاف ستھرا کام ہے. 2019 میں نے سب سے پہلے اپنا آفس بنایا تھا جس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, میں زیرو سے آیا تھا. گھر اپنے والد صاحب سے لڑ جھگڑ کے ان سے میں نے پیسے لیے تھے, تقریباً ان کے پاس کوئی اس ٹائم 1.5 لاکھ روپے جو ان کے پاس سیونگ تھی انہوں نے وہ مجھے اس ٹائم دی تھی. پھر میں نے آفس بنایا تھا, پھر بیچ میں کرونا آ گیا. کرونا آ گیا, پھر اس کے اندر آفسز ہمارے بند ہو چکے تھے, لاک ڈاؤن ہو چکا تھا. اس ٹائم پہ بھی میں نے بہت سارے کرائسس فیس کیے ہیں اپنی جیب سے, مطلب میں نے رینٹ بھی پے کیا ہے, مطلب کام نہ ہونے کے برابر ہو چکا تھا. آپ کو پتہ ہے کرونا میں جس وقت لاک ڈاؤن ہوا تو تمام جو کاروبار ہے وہ بند ہو چکے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے اس وقت میں نے ہینڈز اپ نہیں کیے. آپ کی جو لینڈ مارک جو کمپنی ہے, لینڈ مارک ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی جو ہے آپ کی, یہ ابھی اٹک کی کون سی ڈومینس پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے, کون سے ایریاز پہ آپ لوگ کام ابھی فی الحال کر رہے ہیں؟ اچھا, اٹک کی اگر لوکل ایریاز کی بات کریں تو لوکل ایریا میں تو پورا اٹک شہر آتا ہے. آپ کو کہیں پہ کمرشل پلاٹ چاہیے, ریزیڈینشیل پلاٹ چاہیے, کوئی گھر چاہیے, آپ لینا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں, ہم سے ضرور رابطہ کریں. آپ کو بازار میں کوئی کمرشل شاپ چاہیے وہ مل جائے گی. مطلب پورا جو اٹک سٹی کا ایریا ہے نا
लोकल प्रॉपर्टी इसके अंदर हर तरह की हमारे पास है। बहुत ज़्यादा मार्जिन तो नहीं रखेंगे आप? नहीं इंशाल्लाह जो इंशाल्लाह आपके रेफरेंस से आएगा उसका तो ज़्यादा प्यार मोहब्बत होगा। चलें जी, आप अटक टीवी के रेफरेंस से आ सकते हैं तो आपको अच्छा अपार्टमेंट भी मिल सकता है, अच्छा ऑफिस भी मिल सकता है, लग्जरी आपके पास है, आपको एक अच्छा सा आपका होम स्वीट होम भी मिल सकता है। ठीक है जनाब। अच्छा मुझे ये बताएं, एक सवाल जो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आवाम मुझसे करेगी, अगर आपके पास आपका जो सरमाया है, ठीक है ना, वो ज़ीरो है, आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिज़नेस में इनरोल होना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है हमाद साहब? बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा। अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ये काम भी शुरू करना चाहते हैं ना, तो मैं समझता हूँ पॉसिबल है। जस्ट आपके पास एक बाइक होनी चाहिए जिसके ऊपर आप किसी को विजिट करवा सकते हैं। आप देखें, खुद मेहनत करें ना, लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स में रहें। आजकल मैं समझता हूँ जितना काम ये लोकल जो विदाउट ऑफिस के प्रॉपर्टी डीलर्स कर रहे हैं ना, जो लोकल चल फिर के कर रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा कर रहे हैं। सही, मतलब मैं भी कर सकता हूँ इस काम को? ऑब्वियसली आप भी कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आप इस बिज़नेस में आ जाते हैं तो उसके बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा सा बता दें कि आप मिनिमम लेवल आपका क्या होता है और मैक्सिमम लेवल आप कहाँ तक अप्रोच करके जा सकते हैं? मिनिमम लेवल तो कोई भी हो सकता है, जीरो मिनिमम लेवल है आपका, लेकिन आपका मैक्सिमम जो लेवल है ना, इसके अंदर मैक्सिमम कुछ भी नहीं है। ऐसा भी तो होता होगा ना कि आपके पास मैक्सिमम बहुत कुछ है और इस बिज़नेस में आने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं रहता अगर आप इसको सही तरीके से सर्च नहीं करते? नहीं, इसमें देखें, प्रॉपर्टी हम समझते हैं ना, जो प्रॉपर्टी है ना, तमाम कारोबार में जो ज़मीन है ना, या जो प्रॉपर्टी का काम है, वो माँ की हैसियत रखता है। जिस तरह एक माँ अपने बेटे का नुकसान नहीं करती ना, प्रॉपर्टी नुकसान नहीं करती। प्रॉपर्टी नुकसान नहीं करती आपका। नुकसान होता है आपको दो सूरतों में, या तो आप वेरीफाई करके चीज़ नहीं लेते, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करते, प्लॉट ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, आप उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कर रहे। जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा ऊपर ही गई है, आज तक प्रॉपर्टी नीचे नहीं आई। हमाद, आपकी लैंडमार्क जो लैंडमार्क रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है, वो 3 तरह की चीज़ों के साथ जो है वो काम कर रही है। मॉल ऑफ अटक, जिसके बारे में मैंने बता दिया, फिर उसके बाद जो आपका गवादर का प्रोजेक्ट है, उसके बाद आपके पास जो अटक की लोकल बॉडी है। मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा आप भी इनके बारे में बता दें, मॉल ऑफ अटक के बारे में बता दें थोड़ी सी वजाहत के साथ, और जो गवादर का प्रोजेक्ट है आपका बड़ा एक अच्छा मनसूबा है जिसमें आप कम सरमाए के साथ इनरोल हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अपनी आवाम को ज़रा बता। मॉल ऑफ अटक तो हमारे पास अभी न्यूली प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जिसकी कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है। सही। मॉल ऑफ अटक की लोकेशन के अगर हम हवाले से बात करें, संजवाल मॉडल टाउन बी ब्लॉक के गेट से पहले बाहर मेन रोड पे 3 कनाल का ये प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपके पास बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पे आपके पास कमर्शियल शॉप्स हैं डिफरेंट साइजेस में। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपके पास सारे ऑफिसेज आएंगे। ठीक है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर जो आपका वो रेजिडेंशियल है, सिंगल बेड और डबल बेड अपार्टमेंट्स हैं इसमें हमारे पास। उसके बाद रूफ टॉप के ऊपर रेस्टोरेंट्स हैं 2, स्विमिंग पूल है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि जिम्स वगैरह, मैं समझता हूँ कि अटक के लिहाज से बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट है। अटक में पहला लग्जरी प्रोजेक्ट होने जा रहा है। अच्छा, इसमें जो लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास 30% से बुकिंग स्टार्ट है। ठीक है। प्री लॉन्चिंग रेट्स हमारे पास थे जो आपके रिवाइज हो चुके हैं तकरीबन 4 हफ्ते, आप ये कह सकते हैं 1 माह हो चुका है जो रेट एनओसी जो है इसका अप्रूव्ड है ना? जी, एनओसी अप्रूव्ड है। एनओसी इनका ये संजवाल मॉडल टाउन वालों का ये जो उसी के ऊपर ये बन रहा है। ठीक है। ये मॉल ऑफ अटक में आपको बताते चलूँ कि संजवाल मॉडल टाउन है उसके बिल्कुल पहलू में वाक़या है ये मॉल ऑफ अटक। ठीक है। अच्छा मुझे जनाब ये भी यहाँ पर थोड़ा सा बता दें मॉल ऑफ अटक के बारे में कि यहाँ पे तकरीबन जो आपने कहा 25% जो इसके साथ इन्वेस्टमेंट्स के साथ आप आ सकते हो, तो इसके बारे में मुझे बताओ कि कब्जा कब तक आपको जो है वो मिल जाएगा? कब्जा तकरीबन जो मैं समझता हूँ कि ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 15 से 16 महीने के अंदर आप, मतलब 1 साल से 1.25 साल के अंदर इंशाल्लाह आपको कब्जा मिल जाएगा। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है, अगर आज आप कैश पेमेंट पे अगर आप ये कोई भी चीज़ इसके अंदर बुक करते हैं, वो चाहे आपका अपार्टमेंट है, चाहे वो आपका कोई कमर्शियल शॉप है, चाहे कोई ऑफिस है, अगर आज आप डे फर्स्ट से सारी पेमेंट कैश करते हैं तो आपको डे फर्स्ट से उसका रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आपको पोजेशन नहीं मिलती, जब तक आपको कब्जा नहीं मिलता, उसका 0.7% आपको जो आपकी टोटल पेमेंट है उसका 0.7% रेंट मॉल ऑफ अटक आपको हर माह पे करेगा। सही। अच्छा मुझे गवादर के बारे में बता दें जो कम सरमाए के साथ। अच्छा, गवादर मैं समझता हूँ कि आजकल के लोग हैं इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, गवादर इस टाइम आप कह सकते हैं पाकिस्तान के सर का ताज है। आपका जो सी पैक है, पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी आने वाले टाइम पे यहीं से होनी है। सही। गवादर में इस टाइम एशिया का पहला बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो सितंबर का जो टाइम है हम सुनने में आ रहा है, सितंबर में इंशाल्लाह वो ऑपरेशनल होगा। ये भी एनओसी अप्रूव्ड है?
कैसे? ये भी एनओसी अप्रूव्ड है गवादर का जो प्रोजेक्ट है ये जी, गवादर का प्रोजेक्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गवादर से अप्रूव्ड है। सही है। बीच सिटी पसनी गवादर के नाम से हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 200 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 1650 केनाल पे। सही। ठीक है, जिसमें आज इंतहाई सस्ते रेट पे प्लॉट्स मिल रहे हैं। अच्छा, लोग हैं ना यहाँ पे मजाक समझते हैं इस चीज़ को। आपने अक्सर सुना होगा जिस वक्त ये लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, कहते हैं काश उस वक्त मैं किसी दोस्त की बातों में ना आया होता। फिर कहते हैं काश उस वक्त वो जगह मिल रही थी, मैंने काश वो ले ली होती। बाद में पछतावे के अलावा अच्छा, वक्ती तौर पे जिस वक्त उनको चीज़ सस्ती नजर आ रही थी ना, वो स्कैम समझते हैं, फ्रॉड समझते हैं। लेकिन बाद में उनको इस चीज़ की कदर है वो करना पड़ता है। जब आप बिजनेस करो तो फिर आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। उनको बाद में इस चीज़ की कदर आती है। ठीक है। आज अगर आप ये अटक देख रहे हैं तो आज से मैं कहता हूँ आप 20 से 25 साल पीछे चले जाएं, वीराना था ना। ये आज आप दारुल इस्लाम कॉलोनी देखते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ डीलर नजर आता था। और आज देखें यहाँ पे मैं समझ 12 से 15 लाख रुपए मरला यहाँ पे मिल रहा है। मिलती नहीं है तो उस वक्त जिन लोगों ने बेच दी थी आज वो पछता रहे हैं कि यार काश हमने ना बेची होती। सही। हमेशा वीरान जगह ही आबाद होती हैं। आबाद जगहों को आबाद करने की जरूरत नहीं होती। और हमेशा अगर आप इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो हमेशा करनी ऐसी जगह पे चाहिए जहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो तब आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट देगी। जहाँ पे सब कुछ है वहाँ पे क्या आपको फायदा इन्वेस्टमेंट करने का। तो गवादर जो है, गवादर इस टाइम वो पाकिस्तान के पास मोर है जिससे पाकिस्तान के आने वाली सारी मुश्किलात हल हो सकती हैं। ठीक है, एशिया का पहला बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सितंबर में इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो रहा है। सही है। ठीक है, जिस वक्त ये ऑपरेशनल होना है उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स आनी है। ठीक है, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर गवादर के अंदर चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। तो आज मैं समझता हूँ अगर हम 10 मरला की फाइल, और मैं आपके ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे पास आते हैं तो आपके लिए 2.5 लाख रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। अच्छा। 10 मरले का प्लॉट, इसके अंदर आपको 4.5 लाख रुपए का, वैसे हम बाय 4.5 लाख रुपए का देने कैश पे 10 मरले का प्लॉट। लेकिन कोई बंदा आपकी रेफरेंस से आएगा, कोई बंदा अटक टीवी की रेफरेंस से आएगा तो आपको 4 लाख रुपए में। सही है जी, चलिए बहुत शुक्रिया। अटक की लोकल बॉडी के बारे में बता दें, उसके बाद एक छोटा सा पैगाम आपसे लेंगे। अटक की लोकल बॉडी के हिसाब से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अटक के अंदर जितनी लोकल प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, एवरीथिंग इन एवरी एरिया ऑफ अटक, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। सही है। ठीक है, जहाँ तक रह गई हम कमीशन बेस पे काम करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह उधर भी जहाँ तक हम आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर सकें हम ज़रूर करेंगे। ठीक है। जो आपके आएगा रेफरेंस इंशाल्लाह हम उसके साथ मज़ीद प्यार मोहब्बत करेंगे। अच्छा, अटक के जो नौजवान हैं रियल स्टेट की बिजनेस में इनरोल होना चाहते हैं, उनके लिए कोई पैगाम लास्ट? अटक के नौजवान अब मोस्टली मैंने देखे हैं वैसे घूम रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का रोना रो रहे हैं। अब मेरे पास अगर आप ये टीम देखें तो लड़के बैठे हैं। अच्छा, ये इनकी भी क्वालिफिकेशन यही मैट्रिक है, लेकिन माशाल्लाह को मेरे साथ तकरीबन अभी 1 से 1.5 साल हो चुका है और ये माशाल्लाह इतने को ट्रेन हो चुके हैं जो अभी बाहर काम मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले मुझे खुद जाने की ज़रूरत पड़ती थी, खुद जाके विज़िट करवाना पड़ता था। अगर रजिस्ट्री करवानी होती है, ट्रांसफ़र करवानी होती है कचहरियों में, मुझे खुद देखे खाने पड़ते थे। लेकिन अलग शुक्र है 1.5 साल इनके ऊपर मेहनत की, अब मुझे वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सारा काम आगे जितना भी होता है वो ये संभालते हैं। तो अटक के नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि आप काम करें, आप कर सकते हैं। जिस वक्त इंसान खुद ये कहता है ना कि मैं हार गया हूँ, या इंसान पहले कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, कोई भी काम है, अगर आप खाना आपके सामने पड़ा हुआ है ना तो आप कहते हैं कि मैं ये नहीं खा सकता, तो आप फिर वो नहीं खा सकते। जब आपने कह दिया नहीं खा सकता तो हार नहीं माननी, काम करना है, काम पे फोकस करना है। जब आपका एक काम पे फोकस होगा, आप सबसे पहले आपके अंदर शौक होना ज़रूरी है। आप अपने अंदर ये शौक पैदा करें। जब आपके अंदर शौक होगा आप दुनिया का काम कर सकेंगे, जिस काम का भी आपको शौक होगा। तो हर बंदा कर सकता है, हर नौजवान कर सकता है। अल्लाह पाक ने हमें कोई अलग दिमाग नहीं दिया और बाकियों के पास दिमाग अलग नहीं है। जी जनाब, मैंने आपको पहले भी इनका एड्रेस बता दिया। लैंडमार्क रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनी का आप वैसे भी विजिट कर सकते हैं, इनसे आके मोटिवेशन ले सकते हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में इनसे जान सकते हैं। काम करना ना करना, इन्वेस्टमेंट करना ना करना, वो एक अलहदा बात है, वो आप करेंगे तो अपने लिए करेंगे। जनाब, अटक टीवी से अपने मेज़बान को मलिक फहद को दीजिए इजाज़त। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ज़िंदगी ने वफा की इसी तरह के कुछ नए आइडियाज़ के साथ, कुछ नए बिजनेसेस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।